তিন ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনা নিউ বঙাইগাঁৱত সাংবাদিকক আক্ৰমণ ভৰত পাছৱান নামৰ সাংবাদিকজনক আক্ৰমণ কৰা হৈছে ঠিকাদাৰ সুকুমাৰ দেৱনাথৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ সাংবাদিকজনৰ ভগ্নী আৰু মাতৃকো আক্ৰমণ ঠিকাদাৰৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ ৰেল বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম নিম্নগামী হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল ৰাইজে বিষয়টো শ্ৰমিক ইউনিয়নক অৱগত কৰিছিল ভৰত পাছৱানে আক্ৰমণকাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী সাংবাদিক সংগঠনৰ পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যত আকৌ এবাৰ সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনা নিউ বঙাইগাঁৱত এবাৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ ভাৰত পাছৱান নামৰ সাংবাদিকজনক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঠিকাদাৰ সুকুমাৰ দেৱনাথৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ সাংবাদিকজনৰ ভগ্নী আৰু মাতৃকো আক্ৰমণ ঠিকাদাৰৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ ৰেল বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম নিম্নগামী হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল ৰাইজে আৰু সেই বিষয়টো শ্ৰমিক ইউনিয়নক অৱগত কৰিছিল ভাৰত পাছৱানে আক্ৰমণকাৰীসকলক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে সাংবাদিক সংগঠনে তেখেতৰ লগত তেখেতৰ মাকো আৰু বায়েককো এটেক কৰিছে বাটামেদি হাতেদি মাৰিছে ঘটনাটো হ'ল ডাংতল ৱেষ্ট কলনী হয় আক্ৰমণ এটা ঠিকাদাৰ বুলি গম পাইছোঁ মই যে ঠিকাদাৰে এজন আক্ৰমণ কৰিছে ঠিকাদাৰে আৰু 10-12জন ষ্টাফ লৈ কিনে সেইটো কামটো কৰিছে ঠিকাদাৰৰ নামটো জনামতে সুকুমাৰ দেৱনাথ হয় হুজাইত আৰক্ষীৰ জালত লাট মণ্ডল সহ 4 ভূমাফিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লাট মণ্ডল যুগল বৰাক আটক কৰা হৈছে মাটি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে যুগল বৰাক দালাল সাধন চৌহান মনিৰাম সাহু জগন্নাথ কৃষ্ণ দাসক আটক কৰা হৈছে মাটি সম্পৰ্কীয় সুদপুছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে 3জনক 6 বিঘা ভূমি দেখুৱাই ভিন্নজনৰ পৰা লুটিছিল 50 লাখ টকা ইয়া হুজাৰ খবৰ য'ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লাট মণ্ডল সহ 4 ভূমাফিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লাট মণ্ডল যুগল বৰাক আটক কৰা হৈছে মাটি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতে আটক কৰা হৈছে যুগল বৰাক লগতে দালাল সাধন চৌহান মনিৰাম সাহু জগন্নাথ কৃষ্ণ দাসক আটক কৰা হৈছে মাটি সম্পৰ্কীয় সুদপুছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে আন 3জনকো 6 বিঘা ভূমি দেখুৱাই ভিন্নজনৰ পৰা লুটিছিল 50 লাখ টকা নহয় যাৰ মাটি সি বিক্ৰী কৰি পইচা লৈ পলাইছে কি নাম যিজনে বিক্ৰী কৰিছে শিৱ কুমাৰ তোমাৰ নামটো মোৰ নাম ৰোহিত ৰায় আৰু এই মণ্ডলজনক কিয় ধৰিছে তেওঁৰ ওপৰত কিবা ভুল বোলে কিবা লিখিছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে পুলিচে এই ভুল মানে তথ্য দিছিলে হয় ছাৰ নাই তথ্যটো ভুল দিয়া নাই তেওঁ কৈছে ঠিকে দিছোঁ কিন্তু মানুহে কৈছে যে তথ্যটো ভুল দিছে ছাৰ অৱশেষত বাতিল হ'ল ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ইণ্ডিগো বিমান যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জৰুৰী অৱতৰণ কৰিছিল বিমানখনে উৰণৰ 10 মিনিটৰ পিছতেই অৱতৰণ কৰিছিল বিমানখনত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু তেৰছ গোৱালা গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল বিমানখন প্ৰথম ৰক্ষা বিমানখনত থকা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে যাত্ৰীসকল আমি পুনৰ জনাইছো অৱশেষত বাতিল হৈছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ইণ্ডিগো বিমানৰ যাত্ৰা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল বিমানখনে উৰণৰ 10 মিনিটতেই অৱতৰণ কৰিছিল বিমানখনত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু তেৰছ গোৱালা গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল এই বিমানখন টেক অফ কৰিছে তাৰপিছত ফ্লাইটটো ওপৰত গৈছে ওপৰত যোৱাৰ পিছত কিমান দেৰি পিছত অলমষ্ট লাইক 8টা বজাৰ ওচৰে পাজৰে ফ্লাইটখন টেক অফ কৰিছে আৰু 9টা বজাৰ আশে পাশে পাইলটে এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ এটা ইঞ্জিনত কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে গতিকে আমি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি গৈ আছোঁ আৰু যেতিয়া সেইটো কথা কৈছে তেতিয়া আমাক এশ্বুৰেঞ্চ দিছিল যে আমি আপোনালোকৰ একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে অতি সোনকালে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় পাই যাব কিবা এটা ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰপাছত যেতিয়া ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'লে যে বস্তুখিনি তেওঁলোকে চাব চেক কৰাৰ পাছত 2 ঘণ্টা গ'ল 3 ঘণ্টা গ'ল বহুত সময় গ'ল আৰু ফাইনেলি আমাক কি কৰিলে ইয়াতে মানে ফ্লাইটখনৰ ভিতৰতে আছিল নেকি ফ্লাইটখনৰ ভিতৰত আমি অলমষ্ট 2.5 ঘণ্টামান বহিছোঁ 2.5 ঘণ্টামান বহাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ আমাক কৈছে যে আপোনালোকে বাহিৰত যাওক বাহিৰত আপোনালোকে বহক কলকাতাৰ পৰা ফ্লাইট আহি আছে আপোনালোক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাই দিয়া হ'ব আৰু এতিয়া অৱশেষত আমাক কৈছে যে একো নাই কাইলৈ ফ্লাইট যাব আমাৰ ইমান হাৰাশাস্তি গৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছিলে গৈ পাব লগা বাট এনেকুৱাকৈ হাৰাশাস্তি গৈছে তাৰমানে
অৱশেষত উৰিষ্যাৰ বালাসোৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ উদ্ঘাটন কৰা হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিকো চিনাক্ত কৰাবলৈ দ্ব্যৰ্থহীন ঘোষণা কৰিছে ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ সৈতে যে কোনো লোক জড়িত হৈ আছে সেই কথা ৰেলমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যতে এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে। ৰেলমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণবোৰ উদ্ঘাটন কৰাৰ লগতে ইয়াত যে মানৱীয় ভুল আছে সেইটো প্ৰায় গম পোৱা গৈছে, কাৰণ তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে। ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ সৈতে যে কোনো লোক জড়িত হৈ আছে সেই কথা ৰেলমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যতে এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है. Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই ৰেল দুৰ্ঘটনা কিছু এনিমেটেড ৰূপ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়া বৰ্তমান ড্ৰোনৰ চিত্ৰ আপোনালোকে দেখি আছে, কিন্তু আমি এনিমেটেড আকাৰতো সেইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। ইতিমধ্যে বিশদ বিৱৰণীও আমি আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে, লগতে কিছু দৃশ্যও আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ইয়া এনিমেটেড ৰূপ আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ আৰু যশৱন্ত এক্সপ্ৰেছ দুয়োটা বিশেষ বেলেগ বেলেগ ট্ৰেকত দুয়োখন ৰেল চলাচল কৰি আছিল, কিন্তু তাৰ পাছতেই হঠাৎ লুপ লাইনত প্ৰৱেশ কৰিছিল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছে, আৰু লুপ লাইনত প্ৰৱেশ কৰি তাত ৰৈ থকা মালবাহী এখন ৰেলত খুন্দা মাৰিছিল, আৰু তাৰ পাছত প্ৰচণ্ড শক্তিৰে চিটিকি পৰিছিল ৰেলৰ ডবাবোৰ। এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যবোৰ ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। এফালে আপোনালোকে দেখিছে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন হাওৰাৰ পৰা চেন্নাই অভিমুখী আছিল, আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা আন এটা ট্ৰেকত আহি আছিল আন এখন ৰেল, আৰু এই দুয়োখন ৰেল দুয়োটা বেলেগ বেলেগ ট্ৰেকত চলাচল কৰি থকাৰ মাজতে প্ৰচণ্ড শক্তিৰে এই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছে লুপ লাইনত থকা মালবাহী ৰেলখনত গৈ খুন্দা মাৰিলে, আৰু তাৰ পাছতেই যি দৃশ্য দেখা গ'ল সেই দৃশ্য আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে। এক ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সূচনা হ'ল। एक गाड़ी आ रही थी, मैं फिर से बता देती कोई नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। उसमें कोई चिंता की बात नहीं। 4 लाइन का स्टेशन है। इसकी जो बीच की 2 लाइन्स हैं वो मेन लाइन है, जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज़्यादातर उससे जाती है, और जो 2 और लाइन है आजू बाजू अलग अलग, वो लूप लाइन कहलाती हैं, जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रोकना है तो हम वहाँ पे उसको ले जाते हैं और उसको वहाँ रोकते हैं। इस समय यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको रोका गया कि ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो हैं जिनको यहाँ रुकना नहीं है उनको जाने के लिए एकदम क्लियर पाथ मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है लूप लाइन, जिस पे लिखा हुआ है स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये एक जो हम लोग BCN कहते हैं या कवर्ड गाड़ी होती है मालगाड़ी, वो यहाँ पे खड़ी थी। और नीचे जो लाइन दिख रही है वो अप लूप लाइन है। वो अप लूप लाइन में एक और गुड्स ट्रेन रोक दी गई थी, जिससे कि मेल एक्सप्रेस के लिए क्लियर पाथ मिल जाए। वो गुड्स गाड़ी थी एक आयरन ओर से लदी हुई गुड्स ट्रेन।
ये दोनों गाड़ियां यहाँ पे खड़ी कर दी गई थी और जिससे कि मेन लाइन का रूट सेट कर दिया गया था। चेन्नई की तरफ से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है। बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी। ये गाड़ी कुछ सेकंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से, ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ, और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी एक्चुअली, कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहां से चली थी। शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप मेन लाइन कहते हैं। उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी, 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये ट्रेन है LHB ट्रेन, हमारी जो LHB कोचेस हैं उसकी ट्रेन है ये। LHB इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई
ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट की वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी, वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्च्यून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फेंक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। ये हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके अलावा जो एक और मालगाड़ी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो हम जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं ये आपको, स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये इस पे भी थोड़ा सा वो डिब्बों का इम्पैक्ट हुआ पर कोई खास उसमें क्षति नहीं हुई। ये पूरे एक्सीडेंट का बैकग्राउंड है। इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो रेलवे में एक बहुत लेट डाउन प्रोसीजर है इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए, कि वो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल को मैसेज करी, और उसके बाद हमारी जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन होती है वो 2 जगह से तुरंत चल पड़ी। 20 मिनट के अंदर वो गाड़ियाँ चल पड़ी। एक आई खुर्दा की तरफ से, मतलब भुवनेश्वर की तरफ से, और एक आई खड़गपुर की तरफ से। भुवनेश्वर वाली पहले पहुंची और उसके जस्ट 10 मिनट बाद खड़गपुर वाली पहुंची। साथ में एनडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी बालासोर में स्थित थी क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन और ये सब फ्लड्स वगैरह के लिए उनकी एक टुकड़ी वहाँ पर मौजूद रहती है। उस टुकड़ी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों की एनडीआरएफ के साथ कंटिन्यूअस इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक्सरसाइज चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, और हम लोग बहुत सारी मॉक ड्रिल्स करते हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एनडीआरएफ की टीम जो बालासोर में मौजूद थी वो भी वहाँ से चल पड़ी तुरंत तैयार होकर, और वो भी पहुँची। जो आर्मी की भी वहाँ पे एक टुकड़ी मौजूद थी वो भी मोबिलाइज हो गई, उसको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, वो भी आ गई। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीएम and his team and the SP and the local administration, everybody responded. Locals जो वहाँ पे थे वो तो खैर they are the first responders, वो सारे locals आ गए and immediately जितने लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता था, उनको वहाँ से नज़दीक के अस्पताल ले जाया जा सकता था, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो लोगों ने शुरू कर दी। इट इज़ अ मेजर डिज़ास्टर, उसमें एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक इतनी बड़ी दुर्घटना और इतने सारे लोगों को का इन्वॉल्वमेंट था। ये सारे लोग इसमें सिर्फ इसी फोकस के साथ लगे रहे कि कैसे लोगों को की जान बचाई जाए और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच गए थे, लोकल डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स पहुँच गए थे, वो फर्स्ट एड वहाँ पे करके एंड इमीडिएटली जो भी इंजर्ड थे उनके लिए जो साधन मिला, जो फर्स्ट अवेलेबल साधन मिला, उससे लोगों को मूव करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंसेस तो उसके बाद आई, पर लोगों को इस हिसाब से निकालना और मूव करना शुरू हो गया। ये पूरा बचाव और इसका कार्य पूरी रात चलता रहा। सुबह तक 3 तारीख की सुबह तक जब सारे वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए वहाँ पे, मंत्री जी खुद पहुंच गए, भी ये काम चलता रहा। और करीब दोपहर के 2 बजे के करीब जितने भी लोग उसमें
या तो फंसे थे या जिस भी तरह से थे उनको निकाल लिया गया। ये काम जब कंप्लीट हो गया, हर तरह से इंश्योर कर लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, लोकल पुलिस ने भी ये कंफर्म किया कि यहाँ पे अब कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, तब उसके बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इसलिए रेस्टोरेशन में अभी समय लगेगा। रेस्टोरेशन में भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक वगैरह सब कुछ एकदम डैमेज हो गया। जो OHE के पोल जिस पे कि बिजली के तार चलते हैं वो सब कुछ डैमेज्ड है, तो वो रेस्टोरेशन का काम चलता रहा। उसके बाद पूरी रात मंत्री जी खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज करते रहे सीनियर ऑफिसर्स के साथ। हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे मेंबर इंजीनियरिंग जो हैं वो खुद, और मेंबर रोलिंग स्टॉक, सब लोग वहाँ पर रहे, जनरल मैनेजर्स, DRMs, सब लोग वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम हमारी टीम्स जो कि लेबर, सारा टेक्निकल टीम्स, सारे मटेरियल जो चाहिए रिप्लेस करने के लिए, सब लोग वहाँ पे मोबिलाइज होते रहे। सारी रात वो गाड़ियाँ भी शटल की तरह से चलती रहीं और वो सामान वहाँ पे पहुँचा के अभी आप देख ही रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। शायद शाम तक 8-8 बजे तक हमको एक लाइन मिलने की उम्मीद है। हो भी सकता है कि अगर काम ठीक चला तो दोनों लाइनें इस लायक हो जाएंगी कि कुछ गाड़ियाँ निकल सकें, धीमी गति से निकल सकें। सर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन लाइन। पहले मेन लाइन देंगे क्योंकि गाड़ियां निकलने लगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक मिनट, हम सारे सवाल रुक जाइए। हाँ, मुझे दो चीजें और बतानी, बस 2 चीजें और बतानी। ये तो हुआ रेस्टोरेशन का काम। उसके बाद जो इंजर्ड है उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये सबको कहलवाना चाहती हूँ, हमारी एक सिंपल हेल्पलाइन नंबर है 139। 139 हमने सब जगह अलग अलग स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स खोल दिए, हर जगह हेल्प डेस्क खोल दिए, हर स्टेशन पे जो भी कनेक्टेड स्टेशंस हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क खुली हुई है, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं लोगों की, रिलेटिव्स की मदद करने के लिए। हम लोग खुद पूरी रात यहाँ पे 36 घंटे से हमारे, मैं पर्सनली तो यहाँ पे 36 घंटे रही हूँ, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो शिफ्ट ड्यूटी पे आते रहे हैं। हमारा एक वॉर रूम है, वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से हम सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे यहाँ से, जो कि दूसरी एजेंसीज के साथ चाहिए, पैसेंजर्स के साथ चाहिए, जो इंजर्ड हैं उनके साथ चाहिए, उनके रिलेटिव्स के साथ चाहिए, उनके नेक्स्ट ऑफ किन के साथ चाहिए। तो वो हम आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाना चाहते हैं जो भी परेशान है इस सिचुएशन में। 139 एक सिंपल नंबर है, उसको कॉल करें। वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे, वहाँ पे कोई कॉल सेंटर के ऊपर हमने नहीं सिर्फ काम छोड़ रखा है कि वो जो आपको 1 घंटे कहेंगे और कहेंगे कि अब आप ये नंबर डायल करिए, अब वो नंबर डायल करिए, या आप इससे कॉन्टैक्ट करिए और हमें नहीं पता, हम बताएंगे आपको। इस तरह की चीज़ से हमने इसको निकाल के हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि खुद एक एक कॉल का जवाब दे रहे हैं और जितनी मदद हो सकती है लोगों को कनेक्ट करने की वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगेन आपके माध्यम से मैं सब पब्लिक को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि किसी के भी अगर कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीबडी नोन टू देम अगर इसमें फंसे, इसमें अफेक्ट हुए हैं, प्लीज़ कॉल 139। हम उनको बालासोर जहाँ के हॉस्पिटल्स में लोग हैं, भुवनेश्वर जहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोग हैं, वहाँ तक हम उनको पहुँचाएंगे। हम उनकी जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ देयर जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ कनेक्टिंग देम टू देयर loved ones, their friends जो भी इसमें इंजर हुए हैं। हम उनके वहाँ पे लोकल मूवमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। हम वहाँ पे अगर उनको कहीं रहने की व्यवस्था चाहिए, उनको खाने की कोई ज़रूरत होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। हर एक पेशेंट के साथ हमारा एक स्काउट एंड गाइड नॉमिनेटेड है जो कि उस पेशेंट 15 channels, 15 languages, 26 states, 1200